السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العالمون، الذی لا یدرکه بعد الامم ولا یناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ مومنین کرام، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت، رسولوں کو رسول بنا کے بھیجنے کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اپنے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا۔ جس زمانے میں جس قسم کے معجزہ کا تقاضا تھا، جس قسم کے معجزہ کی ضرورت تھی، اس قسم کا معجزہ دے کے بھیجا۔ تمام نبیوں کو ایک جیسا معجزہ دے کے نہیں بھیجا۔ وَأَرْسَلْنَا وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ساتھ ساتھ کتابیں بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے دے کے بھیجا، اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار یا کسوٹی بھی بنا کے بھیجا۔ یہ معجزات دے کے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ قرآن میں ایک سے زیادہ مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ایک مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ مختلف متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد کو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ بہت طلب آیہ کریمہ ہے۔ یعنی انسانی ذہن یہ کہتا ہے، انسان کا اپنا ذوق یہ کہتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے انبیاء کو معجزات دے کے بھیجا، کتابیں دے کے بھیجا، حق اور باطل میں تمیز کا طریقہ یا معیار بنا کے بھیجا، تاکہ نبی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم کریں۔ جس کو معجزات دے کے بھیجا ہے وہ یہ کام کرے۔ لیکن آیہ کریمہ یہ نہیں کہتی۔ آیہ کریمہ کہتی ہے ہم نے نبیوں کو بھیجا معجزات دے کے تاکہ لوگ معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کریں، لوگ یہ کام کریں۔ نبی دعائیں کر کے معجزہ کے ذریعے یا مخالفین کو کے خلاف بد دعا کر کے ان کو اس طرح دبا کے زبردستی نظام عدل قائم کرنے کا وہ مامور نہیں ہے، اس کو یہ آرڈر نہیں ہے۔ جو کرنا ہے اس نے لوگوں کے تعاون سے کرنا ہے۔ اس لیے ائمہ معصومین میں سے جس کو ناصر و مددگار ملے اس نے قیام کیا، جس کو ناصر و مددگار نہ ملے اس نے قیام نہیں کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت علی بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقروا علی قدۃ ظالم وصغل مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها وَأَسْقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا۔ یہ چند ناصر مددگار کی وجہ سے اگر حجت علی کے اوپر تمام نہ ہوئی ہوتی
اور اللہ نے علماء کرام سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، یہ معاہدہ نہ کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے علماء سے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک اور پیاس کے تماشائی بنے نہ رہیں، تو لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَأَسْقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا۔ یہ جو خلافت کی سواری ہے نا، اس کی باگڈور کو خلافت کی پشت پر چھوڑ دیتا اور اس سے کہتا تو جہاں جانا چاہتی ہے چلے جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور یعنی آخری دور میں بھی، چوتھے دور میں بھی وہی کام کرتا جو پہلے گزشتہ ادوار میں میں نے کیا تھا۔ دیکھا، یہ ایک اصول ہے، جس کو ناصر و مددگار ملے اس نے قیام کیا، جس کو ناصر و مددگار نہیں ملے اس نے قیام نہیں کیا۔ تو معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرنا لوگوں کی ذمہ داری ہے، البتہ انبیاء اور الہی نمائندوں کی قیادت اور ان کی رہنمائی میں انبیاء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، البتہ عوام کی مدد سے۔ لیکن یہاں اللہ یہ قیام عدل کی ذمہ داری کو حکمران یا نبی کی دوش پر نہیں رکھ رہا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ انبیاء کا یہ کام ہوتا ہے۔ یہ میں نے لمبی تمہید اس لیے باندھی، میں ایک روایت آپ کو سنانے کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کی تمہید کے طور پر کچھ پسندیدہ صفات ہیں، ان کو بیان کرنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پسندیدہ صفات کو اپنانے یا ان سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ستۃ اشیاء حسن، 6 کام بذات خود پسندیدہ اور قابل تعریف ہیں۔ 6 کام بذات خود پسندیدہ اور قابل تعریف ہیں، لیکن یہ 6 کام 6 لوگوں میں صرف پسندیدہ نہیں ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے نا زیب کا باعث ہے۔ 6 چیزیں اچھی ہیں بذات خود، سب کے لیے پسندیدہ ہیں، جو بھی کام کرے اس کے لیے قابل تعریف ہیں، لیکن نہا من 6 احسن، یہ 6 کام اگر 6 آدمی کریں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور ان کے لیے باعث زینت ہے۔ العدل حسن، عدل انصاف ایک پسندیدہ عمل ہے، عدل انصاف ایک پسندیدہ عمل ہے۔ وَمِنَ الْأُمَرَاءِ احسن، لیکن اگر حکمران عادل ہو، یہ عام آدمی عادل ہو اور حکمران عادل ہو، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک عام آدمی عادل نہ ہو، ظلم کرے، اس کے نقصانات، اس کے فسادات، اس کی تباہیاں اتنی نہیں ہوتی جتنی تباہیاں اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کسی ملک میں یا معاشرے کا حکمران ظالم ہو، حکمران ظالم ہو۔ اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ روایت بہت معصوم ہے۔ اگر علی کو ایک سخت کانٹے دار جھاڑی کے اوپر لٹا دیا جائے، وہ اجر فی الاغلال مصفدہ، اور میرے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں اور وہ ڈال کے توق ڈال کے مجھے وہ گھسیٹا جائے، یہ میرے لیے گوارا ہے۔ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے ان کانٹے دار گھاٹیوں پر لٹا دیا جائے یا میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے گھسیٹا جائے، یہ میرے لیے قابل برداشت و گوارا ہے، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا علی کہ میں ایسی حالت میں خدا اور رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ اس کے بندوں میں سے کسی بندے کا چھوٹا حق علی کی گردن پر ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لو اعطیت الاقالیم السبع بما فی تحتہا، یہ 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں کے نیچے ہے، آسمان کے نیچے زمین ہی ہے، دنیا و ما فیہا کہیں، ساری کائنات کہیں، یہ اشارہ پوری کائنات کی طرف ہے۔ اگر 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں کے نیچے ہے وہ سب کے سب علی کو دے دیا جائے، علی کی جھولی میں ڈال دیا جائے، اور علی سے کہا جائے کہ یہ ساری کائنات لے لو اور ایک چھوٹا کام کرو، وہ کیا؟
अन आसी अल्लाह फी नमलतिन असलुबुहा जल्ब शईरत लमा फ़अलतु। ये सारे कायनात ले लो, वो एक छोटी सी अल्लाह ताला की नाफरमानी करो। वो क्या है? ये एक चूंटी अपने मुंह में एक जौ नहीं, जौ का छिलका लेके जा रही है, ये इसे छीनो और उसके बदले में सारी कायनात ले लो। लमा फ़अलतुहा, ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। यही वजह है अली की अदालत अदल इंसाफ के दास्तानों को गैर मुस्लिमून ने पढ़ा। वो ईसाई मुअर्रिख जोरदाक, आपको ताज्जुब होगा, वो हजरत ईसा को कोई खुदा मानता है, कोई खुदा का बेटा मानता है, उसने हजरत ईसा की शान फजाइल में कोई किताब नहीं लिखी। अली की शान में अरबी में किताब लिख के किताब का नाम रखा है सौतुल अदालतिल इंसानिया अल इमाम अली, नाम रखा है, अली का नाम रखा है इंसानी अदालत की आवाज। असल किताब अरबी में है, हाँ, फारसी में भी उसका तर्जुमा मौजूद है, इंग्लिश में भी उसका तर्जुमा मौजूद है, उर्दू में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका तर्जुमा मौजूद है। मौलाना सकलैन काज़िमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, जिन खुसूसियात के वो हामिल थे वो उसका अभी तक खला मौजूद है, उसको कोई पुर नहीं कर सका। जी, वो उन्होंने मुझे बतौर हदिया दिया था, उर्दू तर्जुमा, अरबी असल भी है, उर्दू तर्जुमा भी मुझे दिया था, वो मेरे पास जो है ना वो मौजूद है। किताब लिखी बंदे खुदा ने सौतुल अदालत इंसानिया अल इमाम अली। उसके मुकद्दिमे में एक नुक्ता लिखा है उन्होंने, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मैं अक्सर लोगों को ये सुनता हूँ, कहा करते हैं, ये जुर्जुर्दाक कहता है ये ईसाई राइटर ना, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अली वक्त से पहले पैदा हुए, काश इस सदी में पैदा होते। हम भरपूर इस्तिफादा करते अली से। उस जमाने में पैदा हुए जब मिंबर पर खड़े होकर फरमाया जो पूछना चाहते पूछो। उस अहमक ने कहा ये बताएं मेरे सर के बाल कितने हैं? और तुम्हें पता चल गया कि तेरे सर के बाल इतने हैं तो तुम्हें फायदा क्या होगा? और सारी जिंदगी तुझे पता न चले कि सर के बाल कितने हैं, चिनाच हम में से किसी को भी नहीं पता, तेरा नुकसान क्या होगा? फरमाया मुझे मालूम है तेरे सर के बाल कितने हैं, लेकिन अगर मैं बता दूं तो कौन तस्दीक करेगा या कौन तरदीद करेगा? लेकिन ये तुम्हें बताऊं, मुझे तेरे एक एक बाल का भी पता है और हर बाल की जड़ में कौन बैठा है, उसकी सरगर्मियां क्या हैं, वो भी मुझे मालूम है। अच्छा जी, ऐसा नहीं करूंगा, काश इस सदी में पैदा होते। जुर्जुर्दा कहते हैं मैं लोगों की इस बात से इत्तिफाक नहीं करता कि काश अली इस सदी में पैदा होते, क्योंकि आपका यह कहना कि वक्त से पहले पैदा हुए, काश इस सदी में पैदा होते, इसका मतलब यह है कि जिस सदी में अली पैदा हुए उस सदी के लोगों की जो सतह फिक्र है वो अली की सतह फिक्र के बराबर नहीं थी, इसलिए नामाकूल बातें पूछते थे। हम इस सदी में पैदा होते, इसका मतलब है कि तुम अपनी सतह फिक्र को अली की सतह फिक्र के बराबर समझते हो। अली जब भी पैदा हो यही कहा जाएगा, किसी सदी के आदमी की सतह फिक्र वो अली की सतह फिक्र के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये नफ्स रसूल है। नफ्स रसूल, रसूल खुदा ने पूरी जिंदगी कभी अपने सतह फिक्र के मुताबिक किसी से बात नहीं की, वो उनके समझ से भी बालातर है। इसीलिए हमसे भी कहा कल्लिमुन्नास अला कद्र उक़ूलिहिम, हमेशा जब लोगों से बात करो उनके सतह फिक्र के मुताबिक बात करो। यूनिवर्सिटी के तलबा में जाकर लेक्चर दे रहे, वहाँ वो तुम्हारी सतह गुफ्तगू की सतह लेवल और होनी चाहिए, आम मुमिनीन में और होना चाहिए, किसी देहात में बच्चों में हाँ वो सतह तुम्हारे गुफ्तगू का अंदाज और होना चाहिए। अच्छा जी, कई ईसाई हैं, ब्रैकेट में अर्ज करूं, कई ईसाई हैं कि जिन्होंने हजरत ईसा के बारे में किताबें नहीं लिखी हैं लेकिन अहले बैत के बारे में किताबें लिखी हैं। सलमान कत्तानी सर्च करें, यूट्यूब पर जाएं, सलमान कत्तानी 25 किताबें लिखी हैं अहले बैत के बारे में, 25 किताबें। अच्छा जी, दूसरी चीज जो सबके लिए बेहतर है लेकिन बात के लिए व मिनल व सब्र हसन व मिनल फ़ुक़रा ए अहसन, सब्र
मसाइब के मुकाबले में न घबराना, साबित कदम रहना, ये सबके लिए पसंदीदा है, सबके लिए पसंदीदा है। लेकिन फ़कीर आदमी अपने गुर्बत और फ़ख्र नादानी पर सब्र करे, हाँ, लोगों के आगे जाके दस्त सवाल न करे, ये उसको बहुत ज़ेब देता है। फ़ख्र सबको ज़ेब देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ेब सब्र फ़कीर को देता है। इसीलिए कहा गया है कादल फ़कीर अन यकूना कुफ्र। हमारे एक उस्ताद थे, अफ़गानिस्तान के थे, बर सग़ीर के अक्सर उलमाए किराम के या बिल वास्ता उस्ताद थे या बिला उस्ताद थे। अभी जो नजफ़ में आयतुल्ला इसहाक़ फ़ैयाज़ हैं, वो उनके ससुर थे मोहम्मद अली अफ़गानी। वो कहते रोज़ क़यामत कुछ लोग ना अपने कब्रों से निकल के सीधा जो है ना आज के आम फहम अल्फाज में बग़ैर किसी हिसाब के बाय एयर सीधा वो ऊपर, लोग नीचे हिसाब किताब दे रहे होंगे, वो उनके ऊपर से परवाज करके जा रहे होंगे। पूछे जाएगा ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं भाई? कहेंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने फ़ख्र और गुर्बत पर सब्र करते थे, लोगों के आगे दस्त सवाल दराज नहीं करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, माउ वजहिक जामिदुन, माउ वजहिक आबरू दो लफ्जों से मिलकर बना है, आब और रू। आब पानी, रू चेहरा, चेहरे के पानी को आबरू कहते हैं। माउ वजहिक जामिदुन, ये जो तुम्हारे चेहरे का पानी है ना, ये आबरू, ये बर्फ की तरह मुंजमिद है, जमा हुआ है। ये कब पिघलता है? युक्तिरुहु सवाल, जब किसी के आगे दस्त सवाल दराज करते हो ना, ये फिर आबरू पिघल जाता है। इसलिए फंजुर इंद मन तुख्तिरुहु, अगर नौबत आ जाए, मजबूरी बन जाए, दस्त सवाल दराज करने पर मजबूर हो, फिर सोच समझ के सवाल करो कि किसके आगे दस्त सवाल दराज करना है। एक आदमी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा कि मैंने आपके जद को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के आगे दस्त सवाल दराज करना तुम्हें पड़ जाए, देखो हमेशा हसीन आदमी के आगे दस्त सवाल दराज करो, खूबसूरत आदमी के आगे दस्त सवाल दराज करो, करीम अरब के सामने दस्त सवाल दराज करो, हामिल कुरान के आगे दस्त सवाल दराज करो। बहुत होशियार आदमी था। यूँ एक तरह से ना घेरने की कोशिश की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। कहा कि ये जो आपकी जद ने जो खुसूसियात बताई है ना, वो तमाम की तमाम खुसूसियात मुझे आप में नज़र आई हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना है, हाँ, जो मुझे देखना चाहता है शक्ल सूरत में, हसन और हुसैन को देखे। अरब, करीम अरब, जहां तक करीब अरब होने का ताल्लुक है, अरबों को आपकी वजह से फख्र है। आप चूंकि अरब हैं, इसलिए बाकी अरब भी आपकी वजह से फख्र करते हैं। हामिल कुरान, कुरान आपके घर में नाजिल हुआ है। तो इमाम ने फरमाया, देखो अगर मेरे नाना ने तुम्हें मांगने का तरीका बताया है ना, फिर हमें देने का तरीका भी बताया है। वो फरमाया है अल माऊनतु बेक़द्र अल मारिफा, किसी की मदद करनी हो ना, उसकी मारिफत के मुताबिक उसकी मदद करो। वो एक थैली आई हुई थी कहीं से, उसमें कुछ अशरफी थे। कहा कि देखो भाई, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर तुमने तीनों सवालात के जवाब दिए, तीनों के तीनों तुम्हें दे दूंगा। एक का जवाब दिया 1/3, 2 का जवाब दिया 2/3। 3 सवाल किए और तीनों के ठीक जब जवाब सुनाए और मुस्कराए, और सुर्रा यानी थैली जिसमें अशरफियाँ थी, हाँ, वो उसके हवाले कर दी। फ़क्र सब्र हर एक के लिए वो है, मज़म्मत की गई है। वो कहते हैं कि अगर लोगों को पता होता तो कि सवाल में किसी के आगे दस्त सवाल दराज करने में कितनी रुसवाई है या खिफ़त है, मा सअल अहदुन अहदा, कोई किसी के आगे दस्त सवाल दराज न करता। सब्र सबके लिए पसंदीदा है, लेकिन फ़कीर नादार आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना भाई वो है। अच्छा जी, इसी तरह फरमाया अल वरा हसन वल मिनल उलमा अहसन। वरा
तक़वा परहेजगारी ये पसंदीदा अमल है, लेकिन उलमा को बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़ेब देता है, क्योंकि जिस आलिम में वरा तक़वा और परहेजगारी न हो उसकी वाज़ व नसीहत, उसका जो फ़र्ज मनसबी है उसको आसान तरीक़े से अंजाम नहीं दे सकता। या तो वरा न होने के नतीजे में हक़ की बात वो करेगा नहीं, वो बात करेगा जिसमें उसका मफाद हो, और अगर करेगा भी तो चूंकि वो आवाज़ दिल से नहीं निकलती, लिहाजा आगे वो यानी सामीन पर उसका असर नहीं होगा। दिल, ये भी इमाम ज़ैन लाबद्दीन का फरमान है, अल मौइज़तु इज़ा खरजत मिनल क़ल्ब वक़अत फिल क़ल्ब। कोई भी वाज़ व नसीहत की बात अगर आपकी दिल की गहराई से निकलेगी, सामीन के दिल की गहराई में जाकर उतरेगी। व इज़ा खरजत मिनल लिसान ला यतजावज़ुल आज़ान। और अगर जुबानी कलामी कहते दिल की आवाज़ ना हो, फिर वो सामीन के कानून से ज़रूर टकराएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। वरा तक़वा और परहेज़गारी सबके लिए हसन है, पसंदीदा है, लेकिन उलमा के लिए अहसन है, उलमा के लिए अहसन है, बहुत ज़्यादा ज़ेब देता है। व तौबतु हसनुन व मिन शबाब अहसन। तौबा करना, तौबा वाजिब है, जिस तरह नमाज पढ़ना वाजिब है इसी तरह तौबा करना वाजिब है, क्योंकि जिस तरह खुदा ने फरमाया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो, इसी तरह फरमाया तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून। सबसे कहा गया है कि तौबा करो। तौबा का मतलब क्या होता है? जो गुज़श्ता गुनाह किए हैं उनसे पेशिमान हो, उनसे पेशिमान न होना, डटे रहना, अब भी मुसिर रहना कि मैंने अच्छा किया है, अगर रिश्वत दी है, जिना किया है, वो काम किया, ये काम किया है, पेशिमान होना भी जरूरी है। और फिर फौरी तौर पर उसको तर्क करना भी गुनाह है और जरूरी है, और आइंदा उस गुनाह को न करने का खुदा से अहद करना भी यही तौबा कहलाता। तौबा सबके लिए पसंदीदा है, लेकिन अगर जवान अपनी जवानी में तौबा करे ये उसको ज्यादा ज़ेब देता है। हाँ, बूढ़ा जो है ना, वैसे भी उसके अंदर गुनाह के मुहर्रिकात, अवामिल जो उसको गुनाह पर आमादा करते हैं वो बूढ़े में कम होते हैं, जवान में ज्यादा होते हैं। लिहाजा फरमाया कि तौबा सबके लिए पसंदीदा अमल है, लेकिन अगर जवान करे उसको ज्यादा ज़ेब ये देता है। वल हयाउ हसनुन, शर्म हया एक पसंदीदा चीज है, लेकिन यही पसंदीदा चीज अगर खवातीन में हो उनको ज्यादा ज़ेब देता है। हया इस दुनिया में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला मुहम्मद, वो आपके कुछ लेक्चर्स हैं जो एक मुफद्दल इब्न उमर के लिए दिए हैं। वो एक मुनकिर खुदा से उसकी बहस हुई थी, वो उसको कायल नहीं कर सका, फिर इमाम की खिदमत में आया तो इमाम ने कहा कल कलम लेके कागज लेके आओ, मैं कुछ लेक्चर नोट कराऊंगा, उनकी मदद लो, जो है ना वो कोई भी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा। ये आपके लेक्चर तौहीद मुफद्दल के नाम से मौजूद हैं, बिहार के अंदर मौजूद है, अलग किताब की सूरत में भी मौजूद है, दीनी मदारिस में ये किताब पढ़ाई जाती है तौहीद मुफद्दल, और अभी आपको यहां मिलेगी भी। उसमें फरमाया है अल्लाह ने इंसान को जो नेमतें दी हैं, सबसे पहले अल्लाह की कुदरत की निशानियों को बयान किया है, इंसान की खिलकत से आपने आगाज किया है। इंसान को अल्लाह ताला ने एक टपकने वाले पानी से पैदा किया है, पानी को खून में तब्दील किया, फिर गाढ़ा हो गया, गोश्त का लोथड़ बन गया, हड्डियां बन गई वगैरह वगैरह। फिर वो जब तक वो बाहर की रोशनी का मुतामिल नहीं हो सकता था, माँ की पेट में रहा, और माँ का जो पलीद तरीन खून था वो नाफ के जरिए उसकी जो है ना खुराक बनता रहा वगैरह वगैरह। अच्छा, वो बाहर की रोशनी को बर्दाश्त करने की जब काबिल हुआ जी, उसको बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला वो नापाक और सुर्ख रंग का खून पाक भी हो जाता है, रंग भी तब्दील हो जाता है, जायका भी तब्दील हो जाता है। न मालूम वो कारखाना कहाँ है जहां पर ये खून दूध में तब्दील हो जाता है। वहां अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत हया को बयान किया। हया को दुनिया में अक्सर लोग मुआशरे के अंदर वाजिबात को बजा लाते हैं हया की वजह से, मुहर्रमात को तर्क करते हैं हया की वजह से। हया, इसीलिए फरमाया, ये जुमला है इस्तहयो मिन अल्लाह फी सराइरिकुम,
कमा तस्तहयोन मिनन्नास फी अलानियतिकुम। कितना प्यारा जुमला है। खलवत में, तन्हाई में इस तरह खुदा से हया करो जिस तरह लोगों के सामने कोई गलत काम करने से तुम हया करते हो। इसलिए कि जिस तरह लोग तुम्हें देख रहे हैं ना, जितना लोग तुम्हें देख रहे हैं उससे ज्यादा खुदा तुम्हें देखता है। लोग तुम्हारे हाथ, पांव, आंख, कान के अमाल को देखते हैं, खुदा तुम्हारी नियत को। तुम नियत जब करते हो, नियत करने से पहले खुदा को पता होता है कि ये नियत करने वाला है। चीज है कि नियत करने के बाद का वो इल्म रखता हो। लिहाजा फरमाया जिस तरह तुम लोगों को जो है ना अपने जाहिरी आमाल बजा लाते वक्त या उनको करते वक्त लोगों से शर्माते हो, इसी तरह तन्हाई में, खलवत में या खुदा का तुम में वो खौफ होना चाहिए। जी हाँ, तो ये 5 सिफतें हैं। अल्लाह ताला हमें इन 6 सिफात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन सबसे पहला जो है ना वो अदल। वो अमीर मोमिनीन का फरमान एक दफा फिर सुनाऊंगा, मेरा ख्याल में अक्सर को ज़ुबानी याद हो गया है, इस कसरत से मैंने बयान किया। फरमाया है सलासतुन ला यमूतु साहिबुहुन्ना हत्ता यज़ूक़ वबालहुन। 3 गुनाह ऐसे हैं कि जो भी ये 3 गुनाह करेगा मरने से पहले उसकी सजा भुगतेगा, फिर उसको मौत आएगी। नंबर 1 अलबगी, जुल्म। खुदा जालिम को मरने से पहले सजा देता है इस दुनिया में, जल्दी दे या देर से दे। और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह जालिमों का अंजाम अपना आंखों से देख लिया है। क्या उनका अंजाम होता है जालिमों का? ये वाक़े करबला के जालिमों का अंजाम भी देख लिया है, उसके बाद से सद्दाम के भी देख लिया, कज़ाफी का भी देख लिया, और पता नहीं किन किन लोगों का बुरा अंजाम। ये नंबर 1 जुल्म। अच्छा, जुल्म का अंजाम जरूरी नहीं होता कि सिर्फ जालिम जिसने किसी पर जुल्म किया है, मारा है, पीटा है, कत्ल किया है, नामूस की बेहुरमती की है, वो उस जुल्म का असर उसकी औलाद में भी जाहिर हो सकता है। इसमें ना हो तो उसकी औलाद में जाहिर हो सकता है। लिहाजा अलबगी। नंबर 2 वल यमीनुल काज़िबा, झूठी कसम खाना। झूठी कसम खाने को भी अल्लाह ताला इसी दुनिया में सजा देता है। तीसरी चीज क़तीअतुर रहीम, क़ता रहीम। वालिदैन से नाराजगी है, क़ता कलामी है। औलाद वालिदैन से बात न करे, वालिदैन औलाद से बात न करे, भाई भाई से, बहन बहन से, बहन भाई से, चचा खाला, ये सब अरहाम हैं। क़तीअतुर रहीम, ये 3 गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह मरने से पहले जालिम को भी सजा देता है, क़ता रहीम करने वाले को भी सजा देता है, और झूठी कसम करने वाले को भी सजा देता है।